My dear viewers, you all would reckon with the fact this is Vivekananda, an author, academician, and public intellectual. Of course, the author of the ongoing book, The Living Legends of Mithila Part 2. You all would appreciate that in the year 2017, I wrote the very first series of the Living Legends of India, and sorry, I beg your pardon, Living Legends of Mithila. And I've already embarked on a very unique and spectacular, rather I would like to dub it as a historic journey to write the second series of the Living Legends of Mithila. And I'm here in Janakpur, of course in the immediate vicinity of the sanctum sanctorum of that of Mother Janaki. Today, I am just sitting or rather closeting with that of Mr. Dinesh Purbe, who happens to be a great crusader for the noble cause of Mithila. He is very much on an altruistic mission, and that too, it was extremely appealing to me, because here Dinesh Purbe, he is an exponent of simple living and high thinking. Coming, hailing from a very, very impoverished background, this man had crusaded all his life as a pioneer thinker, because this man has a very highly exalted vision on Mithila. He wants to transform the landscape of this great citadel of Mithila, that is Janakpur, and his thought process had almost revolutionized me. I look upon him as a great crusader who thinks of, who is thinking in terms of complete metamorphosis of that of Janakpur. And we would like to know from him as to what his thought process are all about. And I'm sure that even though the sort of appearance that he exhibits is that of being an average man, or you can say an embodiment or epitome of mediocrity, but his ideas and thought process indeed are extraordinary. Indeed, rarest of rare breeds in today's time, who despite having had a humble upbringing, he has devoted himself to the altruistic mission of improving the lifestyle of Janakpur, giving a facelift to this city, and he wants to uplift the city. He wants to elevate the stature of this city to bring it, at par with the greatest of the global cities in the world today. So once he will unfold his vision, you all will be taken in by surprise the way I was when I came across him, and when he unfolded the treasure trove of his vision for Janakpur. Let us know from him, my dear viewers. I am engaging Mr. Dinesh Purbe in a very short conversation with you. Dinesh Purbe ji, आपने मुझे कहा, मेरे से शेयर किया आपका विजन, तो कुछ ऐसा बताइए कि आप जो है आपका बचपन का थोड़ा सा बात बताइए कि किस गरीब परिवार में आपका जन्म हुआ, किस गरीबी को आपने देखा थोड़ा सा, और ये बताइए कि आप जनकपुर को कैसा बनना देखना चाहते हैं और आप इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, बताइए। सभी को जय जय सीताराम। मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, मगर मैथिली में कहियो, सॉरी मैथिली में कहियो। अपना सबके हम एगो गरीब परिवार से छी, और ठेरा निवासी, धौमसा जिला ठेरा निवासी जनकपुर धाम के हम दिनेश पूर्वे, और हम 4 भाई, 2 दीदी बहनी, और बाबू हमार टीचर छला शिक्षक, और बाबूजी से हम एगो इंस्पायर हम भेल छी, जे कि आदमी के सोच बड़ा हो चाहिए और लुआई खुआई सब सिंपल हो चाहिए, और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ही आदमी के आगाड़ी आदमी बढ़े छे। और ये अपने के एगो एग्जाम्पल के तौर पर अपने के नेपाल के एगो जे भैंसी चराव वाला जे डॉक्टर बनले, आई जे बात हम बार बार हमरा सबके एगो चिरबै छला कि अहाँ बउआ तो उठ के भोर के पढ़, जिनका बारे में कही थी जी, ये अपने के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव पहला राष्ट्रपति नेपाल के, वो एगो भैंसी चरबै छल, मगर हुनकर जे डेडिकेटेड रहे जे डॉक्टर बने के, देखिए वो भैंसी चरेला के बाद में भी
वो डॉक्टर बनले आई देश के राष्ट्रपति भऽ गेलै। एहि पर जे बाबू हमर जे बेसी जोर दै छल, तऽ एगो हमर जीवन में एगो हमर बहुत बड़का एगो अचीवमेंट छै जे बाबूजी जो जोर दै छला जे आदमी आई राष्ट्रपति भऽ गेलै, और बाबूजी हमरा ई जोर दै छला जे कि बौआ एगो आदमी के सिंपल लिविंग होइ चाही, और बेसी अपन महंगा जीवन में नहीं ल जाकर अपन सादा जीवन राखी और उच्च विचार राख पड़ते। और यही के संदर्भ में हम अपने के हमर शिक्षा हासिल भेले, अपने के डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और बैचलर सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में हमर क्रमबद्ध भेले, कुछ टूट गेले, फिर भी हमर क्रॉस 4 वर्ष के जे शिक्षा रही वो फाइनल भेले। और अभी हम अपने के जनकपुर के ई डिग्री सब के के बाद हम एगो मधेश आंदोलन में लगली, जे अपना सबके अधिकार के लिए विकास के लिए जनकपुर के विकास हो चाहिए। एहि क्रम में हम जनकपुर के एगो बचाव के लाइफ लाइन के सेहो काज कैने छी। और अपने के के अगाड़ी में हमरा सदैव मतलब इस कल्चरल इस समाज के लिए सोशल के लिए कुछ करी से एगो सदैव रही। अय्या अपने के ई धरती सीताराम जे अपने के सीताराम धरती छे, ई सीताराम धरती छे, मगर आई के डेट में अपने के अय्या पेट के भी इलाज नहीं छे, शरीर के भी इलाज नहीं छे। ई दूगो बहुत दुखदायी अवस्था छे। एहि दुखदायी के समाधान केना होते ओकर एगो रिसर्च हम के लिए वो रिसर्च में पाई गेली कि जनकपुर के जे पहचान छे जो आवश्यकता से स्थापना करे के, और जनकपुर के पहचान छे सीताराम, सीताराम धाम, सीताराम विवाह। तो ई संदर्भ में जे अभी के जे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से ओकरा वही रेस में आई के हम ल जाए के एगो लक्ष्य बनले, जे मैरिज लैंड शहर के रूप में विश्व मानचित्र में एकरा एगो मैरिज लैंड शहर के रूप में ल जाए। और ई लक्ष्य पर हम अभी आगाड़ी बढ़ रहा छी। तो ओहिमे कनी और बतबियो जे मैरिज लैंड की छे, ई स्टेडियम कोनो बनाबऽ चाहै छियै ग्लोबल स्टेडियम, ओकर बारे में किछु हमरा दर्शक बिंद के कहियो। और एकटा कोनो प्रोजेक्ट अहाँ के या 3टा प्रोजेक्ट ओ की असते बारे में कनी विस्तृत बतबियो। जी, ई मैरिज लैंड में मुख्यतः ई विवाह के ई धरती छे, विवाह के धरती सीताराम विवाह धरती के रूप में छे। विवाह धरती के रूप में जे उनकर परिचय छे सीताराम के, वो एगो वीर के रूप में परिचय छे। ई धरती एगो वीर के रूप में परिचय छे, और सीताराम सेहो एगो वीर के रूप में परिचय छे। तो वीर के सीताराम के वीर के अखाड़ा के रूप में एगो अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला, जे दुनिया के नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला बनाओ, जेने सीताराम नंबर 1, सीताराम नंबर 1 अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला बनाबे के एगो योजना छे। दोसर योजना छे जे अपने के मैरिज अखाड़ा बनावे के, विश्व के वैवाहिक अखाड़ा के रूप में एकरा कि मैरिज स्टैचू की बनवा चाहे छी। स्टैचू ऑफ मैरिज अंतर्गत अपने के इंटरनेशनल मैरिज कल्चरल हर एक देश के कल्चरल म्यूजियम के रूप में सेहो ओहि में संग छे। और वो प्रोजेक्ट अपने के स्टैचू ऑफ मैरिज और वर्ल्ड के सभी के एगो फैमिली और एगो फ्रेंडशिप ऑफ वर्ल्ड्स के रूप में ई अगाड़ी धनुष यज्ञ के बारे में किछु अहाँ कहै छलहुँ हमरा। जी, ये अपने के विवाह के ई सबसे बहुत महत्वपूर्ण पक्ष ई छे कि ये धनुष महायज्ञ भेल छे। वो विवाह के मेन फाउंडेशने धनुष महायज्ञ छे। एक मिनट, माय डियर व्यूअर्स, दिनेश पूर्वे should be given full credit for coming up with a very resplendent idea. It is an innovative idea. Yes, he should be given the absolute, the full credit for the same. He is the man who has thought that by building up such a huge stadium here, he will be giving us, giving a message to the entire global community that what the version of the Olympic that entire world is thinking about or trumpeting about. The genesis of Olympic, World Olympic actually begun from that of Janakpur. Because he says that when that Dhanush Yajna was performed or was organized by the King Janak, and he had invited across all the kings and monarchs from across the world to participate in that bow and archery competition, and which was finally won by Lord Sri Ram. So that was the first Olympic in the world. This is the thought process of Dinesh Purve ji.
He is the man who has innovated this idea that Dhanush Yagya was the first worldwide competition which was organized here in the Janakpur thousands and thousands of years ago, when none had any vision of organizing or for the participation of such a huge number of kings and Purans. This is his thinking, and in the process he has already acquired the land. He has facilitated the acquisition of land, and he had even approached Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, and his counterpart in Nepal, that is KPS Oli ji and others, which I would like him to acquaint all of you with his own work that he did in the given context. की काज के लिए ये सब बात कहियो व्यवस्था ये मैरिज लैंड के 4 गो प्रमुख योजना छे। एगो योजना भेल अपने के स्टैचू ऑफ मैरिज विथ इंटरनेशनल मैरिज कल्चरल म्यूजियम। एगो भेल दोसर भेल अपने के द ग्रेट धनुष यज्ञ विथ धनुष यज्ञशाला। तेसर भेल अपने के सीताराम स्पोर्ट्स हब विथ रामायण म्यूजियम। चौथा भेली अपने के धनुष फॉल्स, द ग्रेट फॉल्स, धनुष फॉल्स, धनुष सागर। ये 4 गो योजना के सांस्कृतिक धरोहर बहुत आवश्यक है, और ये हमारे रिसर्च से, वही रिसर्च के हिसाब से ये मैरिज लैंड बनते और विश्व के सबसे दुनिया के मैरिज कल्चरल हब के रूप में खड़ा हो। माने यहाँ कहै छी पूरा विश्व सब एतऽ मैरिज आबो, और ई जे श्री राम और सीता किशोरी जी आ श्री राम के जे भेलन विवाह जे भेलन, वो एक विश्व के लिए एक आदर्श बन। आध्यात्मिक अखाड़ा, विवाह अखाड़ा, वीर अखाड़ा और जे धनुष एगो फॉल्स जे भेल छे से चार गो सांस्कृतिक धरोहर एक मैरिज लैंड के प्रमुख आधार स्तंभ बन। बहुत बढ़िया। अब अहाँ ई कनी कहियो केना नरेंद्र मोदी जी के लिखलिए ना, केना मोदी जी जवाब देलथि, केना केपीएस ओली जी अहाँ के की नाम छी जे प्रधानमंत्री छलखिन ना ऐसा आगा कॉम्पिस्ट के केपी ओली जी, नहीं ओली प्रचंड जी केना प्रचंड जी अहाँ के मंजूरी दिलथि जी, ई सब हमरा दर्शक बुझियो। ये मैरिज लैंड अपने के 2064 से अभियान अगाड़ी हम कयने छी। एहि शहर के बनावे के लिए 2064 से अगाड़ी भेल छै। 18 वर्ष क्रॉस करके 19 वर्ष जा रहल छै, और ये अपने के मैरिज लैंड बनावे के लिए जो पूर्वाधार से फर्स्ट रूप में हम चूज के लिए अपने के वीर अखाड़ा के रूप में, वीर अखाड़ा कुछ सरकार सब के माध्यम से बनाबी, और एक विश्वास जब भ जाए तो एकरा ई बनावे के लिए जे अपने के सीताराम विवाह अखाड़ा, सीताराम धनुष महायज्ञ अखाड़ा, ई जे बनावे के लिए एगो आधार बनते। तकर बाद में एकरा बहुत जे किस्म से अभी जना राम मंदिर बनल छे, जना ताजमहल बनल छे, एगो महत्वपूर्ण एगो हार्ड रूप से एगो नीमन स्ट्रक्चर के रूप में जे हजारों हजार साल चले। तो ठीक है के लिए कि से कहियो ना जमीन कते कहां के भेटल एहि रूप में वीर अखाड़ा रूप में जे अगाड़ी बढ़ रहल छै, ते में अभी 31 बीघा जगह के क्रम छै। 17 बीघा प्राप्त भ गेल छै, 14 बीघा फाइनली नहीं भेल छै, मगर वो प्राप्त के 2 गो मंत्रालय से अगाड़ी बढ़ चुकल छै। और ये राम जानकी वो सीताराम स्पोर्ट्स हब जे राम जानकी अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला के रूप में अगाड़ी बढ़ रहा है, वो अपने के दोनों देश के नेपाल और भारत के नेतृत्व में, मित्र राष्ट्र के नेतृत्व में विश्व के मैत्री हब, खेल हब बनते, और जैसे कि सारा दुनिया के वीर सब ये उतरते, जे दोनों देश के एगो टूरिज्म के बहुत बड़का आधार स्तंभ। मोदी जी के लिखलियन से कहियो ना, मोदी जी के इस सब धारणा हम अपने के जनकपुरवासी, समस्त जनकपुरवासी, अयोध्यावासी और समस्त विश्व के जनता के तरफ से हम रिक्वेस्ट केने छली अपने के, जे रिक्वेस्ट के मोदी जी एक्सेप्ट केलखिन और वो अप्रूवल दिलखिन कि अपने सरकार के माध्यम से आओ हम तैयार छी के। तो अभी ये बात अपने के 2019 दिसंबर 12 में हमारा रिप्लाई आयल, और ये अपने के नेपाल सरकार के बुझेला के बाद नेपाल सरकार एक 23 आई अपने के जेठ 16 मतलब 2 महीना पहले अपने के ई बात के नेपाल सरकार मंजूर नामा दिलक, और ये अपने के स्वीकृति प्रदान भ गेले ये मैरिज लैंड के। और मैरिज के भी जे स्टैचू ऑफ मैरिज के लिए भारत सरकार से
पूर्वाधार के स्वीकृति भेल यऽ और मैरिज लैंड के बनाबऽ के लेल नेपाल सरकार से स्वीकृति भेल यऽ जे नेपाल के जे किस्म से नेपाल में जे लुम्बिनी में बनल छै बुध पर वही किस्म के एक किस्म से ओकरे सम्मान करे एहि आधार पर सेहो एक्सेप्ट केलकै यऽ। ई बहुत बड़का जनकपुरवासी के और समस्त मिथिलावासी के लेल गौरव के विषय छै। बहुत बहुत धन्यवाद। My dear viewers, you have seen Mr. Dinesh Purve. Although he appears very mediocre by his appearance, but his thought process is very high. He is thinking in terms of transforming the face of Janakpur. And even Prime Minister, Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, had already taken cognizance of his, of his thought process, of his ideas, and he had already, given him a direction. Given him the direction that you come through the process of law. So he had also approached the Prime Minister of Nepal, and Mr. Prachanda, who was just the predecessor of the incumbent Prime Minister, Mr. Oli, had already sanctioned his project. So he is very much running from pillar to post and doing everything in terms of concretizing or crystallizing his vision, and I wish him all the all success in his endeavor. But most importantly, I would like to underscore this very important fact that this Mr. Dinesh Purve, I would like to suggest him to go for even crowdfunding. Mythils from India and Nepal can join hands and enable the crystallization of the vision of this young man who had spent day in and day out, in churning out the thought process, and not only in churning out the thought process, but in ensuring that his thought process finally, finally meets or ends, finally attain fruition. And it is just, it is the process of getting actualized, process of attaining fruition, because both the prime ministers had already given their approval to his project, and from the since कते का चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कते फंड चाहिए एहि प्रोजेक्ट के लेल 10 अरब से ऊपर छै और ई खास कर के ई प्रोजेक्ट के हम आधार स्तंभ तिनका बताबऽ चाहे छी कि हमर एगो समाज पर एगो चढ़ाव मतलब समाज के उत्तरदायित्व बुझबै और इधर से अपने के जे एगो परिवर्तनकारी जे नेता रहे प्रचंड जी से ही अपने के एगो स्विट्जरलैंड बनाए नेपाल के से हुनकर जे अभिव्यक्ति ऑल अपने के नेपाल में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उनकर जनयुद्ध समाप्ति भेला के बाद तो ओहि के एगो सेहो हमरा बहुत इंस्पायर कल गेलै कि एकरा मैरिज लैंड बनावल के नहीं तो ई फंडिंग के प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनलिए जी डीपीआर बनल डीपीआर नहीं बनल छै डीपीआर के लेल तो अभी बस स्वीकृति भेल है अब एकरा डीपीआर के फेज में ल जाय के छै एगो साला खाला रूप से एकरा बनायल गेल छै कि 10.5 अरब से ऊपर आरू ई पैसा गवर्नमेंट से तो पूरा नहीं भेटल जी एक बार हम सजेस्ट करे छी अपन पूरा मिथिला भारत और नेपाल हर एक मैथिलवासी से हमरा के क्राउड फंडिंग सबसे रिक्वेस्ट किया किसी न किसी सब कंट्रीब्यूट करता और ये हमरा सबसे विश्वास है कि हम सब मिथिलावासी मिल के एकरा आगारी एगो सब कोई उन्स एगो हाथ बन के एकरा हम आगारी एगो पूर्वाधार बनाओ में डीपीआर बनाओ में सहयोग करब से हमरा विश्वास। Thanks a lot, my dear viewers. You heard this particular young man. Indeed, he has a grand vision, and not only he is not only a daydreamer. He had devoted his whole life for it, and has reached to a great extent because he has got his projects approved by both the prime ministers of India and Nepal. And of course, I wish him all the very best of his noble endeavors that should attain fruition, because he is moving in the right direction. It is a matter of time that he attains huge thriving success and flourishing success, to actualize his dreams, and definitely he will end up, he will succeed in his mission and his vision. And definitely I have already portrayed him. He is going to be one of the legends of our upcoming book, The Living Legends of Mithila, based on his devotion for the cause of Mithila. My dear viewers, I would like to emphasize on this point that this current edition, the series of The Living Legends of Mithila Part 2 is absolutely focused and based on the contribution of our achievers from both India and Nepal towards Mithila. Only those who have
tangibly contributed towards the cause of Mithila, they are only to be considered for this upcoming book, The Living Legends of Mithila Part 2. This is Vivekananda. I once again profusely thank this young man, Sri Dinesh Purveti, for giving me an invaluable time. And he wants to say something. Just quickly tell. अंत में सबसे हम ये आग्रह करब, ये हम संपूर्ण नेपाल में रहल मिथिला के और भारत में रहल संपूर्ण मिथिलावासी के तरफ से ये गाड़ी बढ़ रहल छै। सब कोई गार्जियन छी एकर, और हम एक एगो संपूर्ण मिथिलावासी के एगो पुत्र के रूप में, आशीर्वाद के रूप में ये हम अपने सबके तरफ से हम बढ़ेने छी। ये अपने सबके आशीर्वाद एगो हमरा एगो परिकल्पना के जन्म मले मिथिला से, ई सब एगो अपनी सबके आशीर्वाद से ये गाड़ी बढ़ रहले और सबसे सहयोग अते से हम अपेक्षा रखी थी और ये गाड़ी बढ़ रहले। धन्यवाद। Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot, my dear Bidran. जय जय सीताराम। Thank you.